Okay, good afternoon, everybody. So today we are going to discuss about the in-plant training, which is your syllabus for whole semester 8. Okay, there is nothing in place of this training currently. If the GTU allow for the project, then there will be project also. But currently in the syllabus, it is written totally in-plant training for the 12 weeks. Okay, subject code you already know 3180501. And this is the purpose for the in-plant training. Practical exposure it will provide in the field of chemical engineering. It will help to reinforce the theoretical knowledge which you have gained in previous semesters from 1 to 7. Okay, and you have to apply all this knowledge to the real life challenges. Means the challenges which the industry is facing currently. Another thing is to explore the new technology and developments which can lead students to self-employment or even employment generation. Okay, तो जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम आपको दिखते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लिटरेचर सर्वे करके या तो खुद सोच कर भी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिजाइन इंजीनियरिंग आल्सो, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू डिजाइन. ओके, सो अप्लाई दोस नॉलेज और जो भी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई नया टेक्नोलॉजी या तो कुछ नया प्रोसेस, कोई भी नई टेक्निक अगर आप डेवलप कर सकते हो तो दैट इज आल्सो द पर्पस ऑफ दिस इन प्लांट ट्रेनिंग. ओके, और ऐसा अगर आपने कुछ किया तो इट विल गिव यू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इवन आल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आल्सो, मतलब वो कंपनी आपको जॉब भी दे सकती है. तो इसी तरीके से हमको ट्रेनिंग करना है कि जिससे हम हमारा कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में दे सके, जिससे हमको जॉब के लिए भी वो फायदे में हो. ओके, दिस इज द टीचिंग स्कीम वी ऑलरेडी नो. इट इज द प्रैक्टिकल फॉर 24, credit is 12, and assessment end semester it is 100 marks, and progressive assessment. Okay, so after around 6 weeks there will be exam, so that is for the progressive assessment, internal, 100 marks, so total marks is 200. Okay, okay, let us see the important instructions. Every student will have to undergo in-plant training for a period of 12 calendar weeks, so it is compulsory. Okay, not less than 12 weeks. So whatever at whatever date you start the in-plant training, you calculate the 12 weeks. Okay, so 12 weeks should be there. Okay, in place of 12 weeks you can do the in-plant training in a 2 phases also, and each phase will be of 6 weeks. 6 वीक के 2 इंडस्ट्री में भी आप इम्प्लांट ट्रेनिंग ले सकते हो, या तो सेम इंडस्ट्री में 6 वीक लेके 1 वीक का गैप लेके वापस वही इंडस्ट्री में भी 6 वीक ले सकते हो, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. ओके, तो आप 12 वीक एक ही इंडस्ट्री में भी कंप्लीट कर सकते हो या तो 2 अलग अलग इंडस्ट्री में भी कर सकते हो. ओके, इम्प्लांट ट्रेनिंग कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, विच इज गिवन बाय द जीटीयू इटसेल्फ. तो in-plant training in a company, either it be a within state or out of state, it is valid. आप इंडिया में कहीं पर भी ट्रेनिंग में जा सकते हो, there is no restriction for the place. ओके, और कौन कौन सी कंपनी में, तो कंपनी विच आर इन्वॉल्व इन R&D, which companies involved in a process design, then manufacturing, QA, QC, plant engineering, production, even consultancy company is also valid for the in-plant training. Okay, consultancy means they have not their own company but they provide the services, consultancy services. तो ऐसे भी कोई जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके साथ भी आप अटैच रह के in-plant ट्रेनिंग ले सकते हो. ओके, प्रोवाइडेड दिस कंसल्टेंसी मस्ट बी रजिस्टर्ड. Okay, in a government means valid GST certificate should be there, otherwise it is not a registered company. टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे अलग अलग हमको मालूम है कि टेस्टिंग करते हैं हम लेबोरेटरी में, तो कुछ कंपनी ऐसी होती है कि सिर्फ टेस्टिंग करती है, अलग अलग टेस्ट करती है.
तो ऐसे कंपनी में भी आप कर सकते हो। कुछ लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करती है या तो ग्लासवेयर सप्लाई करती है केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो ऐसी कोई कंपनी है तो वहां पर भी आप जा सकते हो। कोई कंपनी ऐसी होती है कि दे हैंडल द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ओके, दे हैव नॉट देयर ओन एनी प्रोडक्शन प्लांट और कंपनी, but it is purely designing company, okay, like alpha project is there, spectra dynamics is there, these are the designing company। ऐसे डिजाइनिंग कंपनी में भी आप इनप्लांट ट्रेनिंग ले सकते हो, ओके। तो ये हो गया अलग अलग कंपनी में आप कौन कौन सी कंपनी में ट्रेनिंग ले सकते हो। सेकंड थिंग, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, मतलब फर्स्ट फेज मीन्स आफ्टर द 6 वीक, okay, after the 6 week of implant training you have to submit the written report. Listen carefully, if you are taking the training in a same industry for 12 weeks, then also you have to submit the report after the 6 week. So 2 reports you have to submit during the semester 8, first report after the 6 week and second report at the end of the semester, okay. So each students need to submit written report based on the work carried out during implant training with weekly diary. So your weekly diary should be there in the report in a hard copy, remember, with original, okay. And the report and weekly diary will be countersigned by the supervisor in charge of the company. I will show you the format of the weekly diary. It is given on the GTU website also. आप वहां से भी रिफर कर सकते हो, यहाँ पर भी मैंने फॉर्मेट वो रखा है, तो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो वीकली डायरी आपको मेंटेन करनी है विथ सिग्नेचर, ओके, ऑफ द कंपनी पर्सन, ये खास ध्यान में रखना, ओके। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज ऑफ इम्प्लांट ट्रेनिंग, assigned faculty from the institute will visit the specific organization industry to have the update regarding the progress of the students from the industry representative, as well as to have interaction with the industry representative, okay। So आप ड्यूरिंग फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज कॉलेज में से कोई भी फैकल्टी आप जहां पे ट्रेनिंग ले रहे हो वहां पे आएगी विदाउट प्रायर इन्फॉर्मिंग टू यू। फैकल्टी विल कम सडनली, ओके। तो एट दैट टाइम यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री में होने चाहिए। वहां पे अगर आपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म किए बगैर अगर आपने छुट्टी लिया और बाय चांस उसी दिन अगर फैकल्टी आए और आप नहीं मिले इंडस्ट्री में, then a strict action will be taken by the college, okay। तो remember this thing very carefully, फैकल्टी कभी भी आपके इंडस्ट्री में आएगी, ओके, और जो भी इंडस्ट्री पर्सन है उसके साथ भी इंटरेक्शन करेगी, आपके बारे में जो भी फीडबैक लेना है वो भी फैकल्टी डायरेक्टली इंडस्ट्री पर्सन के साथ मिलकर लेगी, ओके। तो आपको आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द रिटर्न रिपोर्ट। आपका जो असेसमेंट होगा वो कौन से बेसिस पे होगा, एक तो आपने जो रिपोर्ट बनाया है उसके बेसिस पे, दूसरा वीकली डायरी जो आपने मेंटेन की है, 12 वीक की 12 डायरी होगी, एंड ए प्रेजेंटेशन टू द कमिटी, ओके। आपको प्रेजेंटेशन भी बनाना है इन ईच फेज, okay, in every exam you have to prepare the presentation also, and against the committee of 2 expert faculty members assigned from the university, okay। तो 2 फैकल्टी आपका प्रेजेंटेशन लेगी और उस तरीके से आपका असेसमेंट होगा, ओके। जनरलाइज पॉइंट्स फॉर द रिपोर्ट प्रिपरेशन। अभी ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द ट्रेनिंग, ओके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट मिसिंग हो जाए ट्रेनिंग में लेने का। तो ये जनरलाइज पॉइंट्स है, उसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, अगर हमारे रिलेवेंट नहीं है तो उसको माइनस भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, ओके। तो सबसे पहला आपको आएगा कंपनी प्रोफाइल। जो भी कंपनी में आप ट्रेनिंग ले रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ जानना है, हिस्ट्री से लेके करंट जो भी उसका सिनेरियो है वो। तो दैट इज कंपनी प्रोफाइल, देन लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके। तो ये ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल है। जनरली आपको वो वेबसाइट पर से भी मिलता है, आप कंपनी में इंटरेक्शन करोगे अलग अलग लोगों के साथ,
तो उनके पास से भी आपको ये सब बातें जानने को मिलेगी। ओके, सेकंड थिंग P&I डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ओके, अगर आपका कंपनी कोई प्रोडक्शन है, मेजोरिटी हमारा केमिकल इंडस्ट्री जो रहेगा उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहेंगे। अगर कंसल्टेंसी कंपनी अगर आपकी है तो उसमें आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो जो कंपनी में जाती है कंसल्टेंसी के लिए, वहां पे जो प्रॉब्लम है उस कंपनी के बारे में आपको लिखना है, बराबर। तो प्रोडक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल प्रोडक्ट ही हो। अगर कोई लेबोरेटरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है कोई कंपनी, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट हो जाएगा लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, थर्ड थिंग मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो अगर आप कोई प्रोडक्शन प्लांट में हो तो आपको उसका जो P&I डायग्राम है, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम, वो आपको डिटेल में स्टडी करके आपको रिपोर्ट में रखना है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी का जो रिपोर्ट है वही रखना है। आपने जो प्रैक्टिकली वहां पे घूम कर देखा है, आप खुद का भी डायग्राम बना सकते हो। ओके, आप ऐसा मत बताना कि कंपनी वाले ये सब डायग्राम नहीं देते हैं। ओके, डोंट एक्सक्यूज सच पॉइंट। अगर कंपनी वाले PFD नहीं देते हैं तो आपको प्लांट में घूमकर खुद डायग्राम बनाना है। ओके, और वो डायग्राम आपको रिपोर्ट में रखना है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। ओके, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में बेसिक क्या होता है, रिएक्टर रहता है और मतलब यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस, ये दो में सभी प्रोसेस कैटेगराइज हम कर सकते हैं। तो वो आपको रिपोर्ट में इन्वॉल्व करना है। क्या कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन हो रहे हैं, कौन कौन से यूनिट प्रोसेस हो रही है, उसके ऑपरेटिंग कंडीशन, उसका मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, वो सब। ओके, एनर्जी बैलेंस एंड मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन। जिस प्लांट में आप जा रहे हो उस प्लांट का मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस भी आपको करना है। ओके, ये कंपनी वाले हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ना भी दे, तो वहां पे जब भी आप प्लांट में जाओगे तो वहां पे रोटामीटर रहता है, फ्लो मीटर रहता है, टेम्परेचर इंडिकेटर रहता है। तो ये सब स्टडी करके आपको खुद एनर्जी बैलेंस और मटेरियल बैलेंस करना है, बराबर। कंपनी वाले आपको डायरेक्टली देंगे ऐसा नहीं है, और कंपनी वाले नहीं देते हैं ऐसा बताना भी मत। ओके, क्योंकि आप प्रैक्टिकली वहां पे स्टडी कर रहे हो तो खुद भी सब डेटा लेकर आप कर सकते हो। ओके, जस्ट मिनट, क्या हो रहा है। ओके, प्रोसेस एंड मैकेनिकल डिजाइन ऑफ एटलीस्ट वन इक्विपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। प्रोसेस डिजाइन एंड मैकेनिकल डिजाइन ऑफ एटलीस्ट वन इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट कौन सा हो सकता है, आइदर रिएक्टर हो सकता है, स्टोरेज टैंक हो सकता है, हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट हो सकता है, डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, एब्जॉर्बर हो सकता है, स्ट्रीपर हो सकता है, कूलिंग टावर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आपने 1 से 7 सेमेस्टर में सीखा है, अलग अलग मास ट्रांसफर में आपने प्रोसेस डिजाइन सीखा है, हीट ट्रांसफर में आपने हीट एक्सचेंजर डिजाइन सीखा है, प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन 1 और 2, अभी तो वो कंबाइन हो गया है, लेकिन उसमें आपने मैकेनिकल डिजाइन सीखा है और प्रोसेस डिजाइन भी सीखा है। वो आपको सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा इक्विपमेंट मुझे डिजाइन करना है। ओके, एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस डिजाइन विद द इंडस्ट्री बिकॉज ऑलरेडी इक्विपमेंट इज देयर इन द इंडस्ट्री। ओके, तो बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा यू डिजाइन द वेसल। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर हो रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये डिजाइन खास कोई भी एक इक्विपमेंट का डिजाइन आपको रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। आप कोई भी कंपनी में हो, आप कंसल्टेंसी वाले कंपनी में हो या तो कोई भी कंपनी में हो, कोई भी एक इक्विपमेंट का आपको डिजाइनिंग, कंप्लीट डिजाइन, ओके, प्रोसेस डिजाइन एंड मैकेनिकल डिजाइन बोथ। प्रोसेस डिजाइन में आपका डायमीटर आएगा, हाइट आएगा, मैकेनिकल डिजाइन में आपका MOCB आएगा, थिकनेस आएगा उसका, और उसके जो इनलेट आउटलेट है, उसका जो सपोर्ट डिजाइन है, वो सब कुछ आएगा, बराबर।
उसका जो हेड है वो भी आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, बराबर। नोजल भी इसमें आएगी। ओके, देन ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल which may include liquid effluent handling, air pollution control measures and solid waste handling and disposal। तो जो भी कंपनी में वेस्ट मैनेजमेंट होता है रिलेटेड टू एयर, रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट, तो उसके बारे में कंपनी में क्या कामकाज होता है वो आपको इंक्लूड करना है रिपोर्ट में। ओके, अनदर थिंग, सेफ्टी मेजर्स ऑफ द प्लांट साइट, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन इंडस्ट्री में लिए गए हैं। ओके, तो उसमें प्रोसेस सेफ्टी आ सकता है, कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में, वो आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे भी, वो देख भी सकते हो आप। बाद में आप इंडस्ट्री में जाओगे तो अलग अलग कलर कोडिंग यूज होता है, सिम्बॉल्स यूज होते हैं अलग अलग, बराबर। अलग अलग साइन बोर्ड भी लगे हुए होते हैं इंडस्ट्री में। बाद में अलग अलग परमिट्स रहती है, वर्क परमिट्स इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप्स की परमिट्स रहती है। बाद में फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम रहता है। ये सेफ्टी रिलेटेड जो कुछ भी है उसके बारे में भी आपको इंडस्ट्री में स्टडी करना है। ओके, तो दैट इज सेफ्टी रिलेटेड। उसके आगे हमने वेस्ट रिलेटेड देखा, बराबर। ओके, अभी ये है हमारा वीकली डायरी। ओके, दिस फॉर्मेट आई विल पुट इनटू आवर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, उसमें भी मैं रखूंगा। अभी शायद इतना बड़ा ये साइज नहीं है तो शायद नहीं दिखेगा, लेकिन GTU की साइट पर से आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप का डायरी हर वीक का आपको मेंटेन करना है विद द सिग्नेचर ऑफ कंपनी पर्सन। ओके ओके, ये फीडबैक फॉर्म है, जस्ट अ मिनट, ये वीकली डायरी का ही पार्ट है। ओके, ये फीडबैक फॉर्म है जो भी कंपनी के पास से आपको भरवाना है। ये भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, बराबर। जो कंपनी आपके बारे में फीडबैक देगी, बराबर, आपको फीडबैक नहीं देना है, कंपनी फीडबैक देगी, बराबर, आपके बारे में। और इसके बेसिस पे भी आपका इवोल्यूशन होगा। अगर कंपनी वालों ने यहाँ पे कुछ रेड पेन से रिमार्क लिख दिया तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, तो जो कुछ भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है कंपनी में, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कंपनी के है वो फॉलो करना है। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस है मेरी साइड से, जो आप फॉलो करो तो आप ट्रेनिंग अच्छी तरीके से ले सकते हो। सबसे पहला है, डू नॉट टच ऑपरेट एनी केमिकल इक्विपमेंट और वाल्व एटसेट्रा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपको कंपनी में कहीं पर भी कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है, बराबर, कुछ भी टच करना नहीं है पूछे बगैर। और पूछे बगैर कहीं पे आपको जाना भी नहीं है। अगर कंपनी ने आपको मना किया है कि भाई दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो आपको वहां पे जाना नहीं है। अगर कंपनी बोलती है कि भाई मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड, तो छुप कर भी किसी को मोबाइल फोन यूज करना नहीं है, फोटो लेना नहीं है, वीडियो लेना नहीं है। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉलेज की इंप्रेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने ऐसा कुछ गलत मिसबिहेव किया तो नेक्स्ट ईयर से वो इंटर्नशिप बंद कर देंगे हमारी कॉलेज के लिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, strictly follow rules and regulations of the company, also follow the instructions given to you by company। ओके, टाइम बाय टाइम आपको जो भी इंस्ट्रक्शन कंपनी देती है उसको स्ट्रिक्टली विदाउट क्वेश्चनिंग आपको फॉलो करना है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द लर्निंग, बराबर। हम सैलरी पर्सन नहीं है तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट वहां पे नहीं कर सकते, हमको वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वो जिस तरीके से हमको ट्रेनिंग देती है उसी तरीके से हमको ट्रेनिंग लेना है। ओके, योर प्रेजेंस बिहेवियर मस्ट नॉट हिंडर द कंपनी रूटीन। आप वहां पे जाते हो तो कंपनी का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई भी डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए आपके बिहेवियर से या तो आपकी प्रेजेंस से। ओके, तो ऐसा बिहेवियर हमको बिल्कुल नहीं करना है।
we are going to learn to use polite speech and behavior with every employee of company. हम वहां पे सीखने जा रहे हैं, तो हमारा जो स्पीच है उसमें पोलाइटनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पे आए और आप हमको कुछ सिखाते नहीं है, ऐसा स्पीच हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, उनके पास जब भी टाइम होता है, जब वो थोड़ा फ्री होते हैं सिखाने के लिए, तब उनके पास जाना है और पोलाइटली बोलना है। बराबर, ऐसा कोई आग्रह नहीं करना है कि आप हमको ये बताओ ही, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। ऐसी स्पीच हमको यूज नहीं करनी है। एंड वी हैव टू यूज द पोलाइट स्पीच विद एवरी एम्प्लॉय। बराबर, वहां पे कुछ वर्कर्स भी होंगे जिनका स्टडी, जिनका क्वालिफिकेशन हमारे से कम है, या तो इतने पढ़े लिखे नहीं भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि भी उनके साथ हम कुछ भी ऐसे बिहेवियर कर सकते हैं, नहीं। वो कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय है, तो उनके साथ भी हमको पोलाइटली ही बात करनी है, और उनके पास से भी हमको जो कुछ भी सीखने को मिले वो सब कुछ हमको सीखना है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ इंजीनियर के पास से ही सीखने को मिलेगा, हर एक एम्प्लॉय के पास से आपको सीखने को मिलेगा। तो ट्राई टू इंटरेक्ट विथ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, फ्रॉम वर्कर टू जो भी हायरार्की में आप जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, मैनेजर लेवल या तो आगे एमडी लेवल तक भी, तो आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपको परमिशन दे। ओके, तो जब भी आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी परमिशन ले लो। बराबर, कि सर आप कब फ्री हो, हम आपके साथ थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप जब भी बताओगे तब हम आएंगे। ओके, तो इस तरीके से पोलाइटली हमको बात करनी है। ओके, try to interact with every level of employee of company from bottom to top. If any complaint against you comes from the company, then strict action will be taken against you by the institute. कंपनी की तरफ से कोई भी कंप्लेंट कॉलेज में आनी चाहिए नहीं। बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, क्योंकि आपका बिहेवियर ही हमारी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यू आर नॉट ए वन स्टूडेंट ओनली, यू आर गोइंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीईसी भरूच केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ऐसे समझ के आप वहां पे रहना और सीखना। डू नॉट बंक द ट्रेनिंग विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी एंड योर मेंटर। कंपनी को बताए बगैर, या तो आपके जो मेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे कॉलेज में से, उनको बताए बगैर आपको बंक नहीं करना है ट्रेनिंग में। ओके, ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विथ एनी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना है तो आप पहले उनकी परमिशन ले लो, क्योंकि कंपनी में उनका ऑलरेडी शेड्यूल रहता है, उनके शेड्यूल में वो बिजी भी रहेंगे, तो हमको उनका परमिशन पहले ले लेना है कि आप कब फ्री हो। ओके, योर इंप्रेशन विल लीव द इंप्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट इन कंपनी। तो अच्छी इंप्रेशन रख के आओ वहां पे, कि जिससे कैंपस के चांसेस बढ़ जाए। उस तरीके से आपको बिहेव करना है। ट्राई टू शो योर बेस्ट एटीट्यूड, लाइक क्यूरियोसिटी, वर्क हार्डनेस, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, वर्किंग इन टीम, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, एटसेट्रा। ये सब जो है, ये बेस्ट आपका वहां पे कंपनी में दिखाओ, कि जिससे उनको भी लगे कि भाई जीईसी भरूच के केमिकल के स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी कॉलेज के कंपैरिजन में कुछ अलग ही है। तो ऐसा यूनिकनेस, यूनिक इंप्रेशन हमारा वहां पे हमको छोड़ के आना है। बराबर, एंड एक रिलेशन हमको बिल्डअप करके आना है, कि जिससे उस कंपनी के साथ हमारा परमानेंट एक रिलेशन कॉलेज का हो जाए। तो उस तरीके से हमको बिहेव करना है। एंड वी आर सेंडिंग यू इन अ कंपनी लाइक फादर इज सेंडिंग हिज डॉटर टू ससुराल। बराबर, एक फादर अपनी लड़की को जैसे ससुराल भेजता है क्या क्या सिखा के। बराबर, तो ऐसा समझ लो कि जब हम आपको कंपनी में भेजते हैं, तो इसी आउटलुक से हम आपको भेज रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटर्नशिप। ओके, तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। अभी आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरी, कुछ क्वेश्चन? सर वो आपने रिएक्शन और ऐसा थोड़ा जो कंपनी हाइड करती है उसको मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे मतलब निकाले हम?
नहीं, आप वहां पे जो शिफ्ट इंजीनियर रहता है या तो वो रहते हैं, इवन लिटरेचर पर से भी आपको रिएक्शन मिल जाएगा बराबर, क्योंकि कौन कौन से केमिकल रिएक्टर में जा रहे हैं वो तो आपको मालूम पड़ेगा ही बराबर। तो उसमें से रिएक्शन कौन सा होता है वो तो आप इजीली जान सकते हो ना, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन इज वेरी वेल नोन टू एवरीबडी। ओके, हो सकता है कि कुछ जो फॉर एग्जांपल कोई कैटलिस्ट अगर यूज होता है तो वो आपको नहीं बताएंगे कि भाई कौन सा कैटलिस्ट हम डालते हैं, कितनी क्वांटिटी में डालते हैं, वो सब शायद वो छुपा सकते हैं। तो उसकी बात जाने दो बाद में बराबर। ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है कंपनी की तो उसमें पढ़ना नहीं है। और एक बार आपके मेंटर के साथ आपको डिस्कस कर लेने का कि सर हमको ये इंफॉर्मेशन कंपनी वाले नहीं देते हैं, तो आपके मेंटर आपको जो भी गाइड करे उस हिसाब से बाद में आपको आगे बढ़ना है। एनीथिंग एल्स? हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी तक तो कंपनी मिली नहीं है, तो अभी तो अब क्या करें सर? कंपनी आप ट्राई करो अभी भी ढूंढने का। कॉलेज की ओर से कुछ कंपनी हमने ढूंढी है, 4 से 5 कंपनी। वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम रखेंगे गूगल फॉर्म। तो जिस कंपनी में आपको जाना है वो चॉइस आप दे सकते हो 1 2 3। ओके, तो वो गूगल फॉर्म डिजाइन करके मैं नेक्स्ट वीक में रखूंगा, या तो फ्राइडे अगर पॉसिबल है तो मैं फ्राइडे रख दूंगा, लेकिन तब तक आप ट्राई करो। ओके ओके, एनी अदर क्वेरी इज देयर? सर अभी तक वो मेंटर का शायद दिया नहीं है सर। नहीं, वो बाकी है, मैं आपको दूंगा बाद में। मेंटर एलोकेशन इज पेंडिंग। ओके सर। ओके, तो मैं आपको दे दूंगा वो। ओके, तो क्लोज करें मीटिंग को। यस सर। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेनिंग। अच्छी तरीके से कंपनी में ट्रेनिंग लो, मेंटर के साथ डिस्कस भी करो बीच में, और जो भी फर्दर अपडेट्स होगा वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट।